learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is use of logical operators in MySQL. Use of logical operators in MySQL. Since relational operators works with single condition. You know relational operators, these operators works with single condition. These relational operators works with single condition. हम लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ है रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में. जस्ट लाइक these are the relational operators. These are the relational operators जहाँ पे हम where clause लगाते हैं. चाहे where clause आप select के साथ लगाएं, update के साथ लगाएं, delete के साथ लगाएं. जहाँ जहाँ पे आप where clause लगाते हैं वहाँ पे इन सब ऑपरेटर्स का यूज होता है. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनका भी यूज होगा और साथ ही साथ में लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज होगा. लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज होगा. नाउ व्हाट अबाउट इफ देयर आर मल्टीपल कंडीशंस? बिकॉज relational operators works with single condition, but what if there are multiple condition with where clause? If there is multiple conditions with where clause, how do we deal? Thus logical operator enable us to use more than one condition in where clause. More than one condition in where clause. See, there are some example of logical operator. First one is AND. This is also used for AND. This is OR, and this is a symbol of OR. We can use AND this symbol also. We can use OR and this symbol also. Okay. Now AND operator returns true. True means return result. Result लिख देते हैं, true के बदले RESULT. Return result if both conditions are true. Both ना बोल के यहाँ पे हम लिख देते हैं given conditions are true. Both का मतलब है single, मतलब double. When we are given conditions, it means more than one, चाहे वो 1, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो ना, उन सब के बीच में अगर हम एंड लगा देते हैं, ये तभी सेटिस्फाई होगा जब सब कंडीशन ट्रू होंगी. यानी कि जो वैल्यू क्या कर रहे होंगे, मैच कर रहे होंगे, जो भी हमारी कंडीशनल वैल्यू होती है. सेकंड और, बिकॉज दिस इज अ सिंबल ऑफ एंड, ampersand sign, double ampersand sign. Now OR, it return true, it returns answer or say result. Return result, RESULT, result if either condition is true. It means one of the condition become true. कोई भी एक condition true हो जाए, ये आंसर दे देगा. It evaluate the answer. एंड क्या करता है, बोथ द कंडीशन और से गिवन कंडीशन आर ट्रू होनी चाहिए और में वन ऑफ द कंडीशन बिकम्स ट्रू. ओके, वी कैन यूज दिस ऑपरेटर इन रियल लाइफ टू सेटिस्फाई डिफरेंट केसेस. एंड द केसेस आर, फर्स्ट केस, when field name is 1 or say same and conditional values are different. Conditional values means where के बाद जो हम field name लिखते हैं उसका जो ऑपरेटर हम लगा देते हैं, उसका जो उसके हम वैल्यू देते हैं जिसके थ्रू हम उसको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं वो डिफरेंट हो. सेकेंड केस, when field name is more than 1, it means कि
एक से ज़्यादा फील्ड नेम है, यहाँ फील्ड नेम एक ही है और सेम नाम का है, यहाँ फील्ड नेम डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट नेम के होंगे। इवन कंडीशनल वैल्यूज भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये दो केस हम जनरली यूज करते हैं रियल लाइफ में। लेट्स फोकस ऑन सम working on these two cases. Let's suppose this is my data and I have to execute all the commands based on these statements. When field name is same and the conditional values are different, here the question is show the records of employee whose salary is in between 29,000 to 40,000. See, when field name is same and the conditional values are different, these are different values, and the field name is same. Second question, display the list of employees or say employee, सिंगल भी आ सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है, whose blood group is either A पॉजिटिव और B पॉजिटिव। यहाँ पे भी देखिए ब्लड ग्रुप आपका सिंगल वो है, आपका सिंगल फील्ड नेम है और ये मल्टीपल वैल्यूज है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर नेम whose blood group is B positive, see B positive blood group, एक ही आ गया, and should be from department number D2। डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, D2। इट मीन्स ये आपका सेकंड केस आ गया, when there are more than two field, this one and this one, and conditional values are different, these are conditional value। ये आपका बी पॉजिटिव होना चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर D2 का ही होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये डिस्प्ले करेगा। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर नेम डिपार्टमेंट नंबर एंड ब्लड ग्रुप हुज, जहां पे यहां से हम कंडीशन लगाने शुरू कर देते हैं सेकंड पार्ट से। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि क्या आपको डिस्प्ले करना है, हमको डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय नंबर नेम डिपार्टमेंट एंड यहाँ तक, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। किसी भी क्वेश्चन में देखिए दो पार्ट है आपके, क्या डिस्प्ले करना है, यहाँ तक क्या डिस्प्ले करना है और कहाँ और कैसा डिस्प्ले करना है ये डिसाइड कर रहा है, क्या डिस्प्ले करना है ये डिसाइड कर रहा है और किस तरह का डिस्प्ले होगा वो ये डिसाइड कर रहा है। दो पार्ट होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, क्या डिस्प्ले करना है और कैसे डिस्प्ले करना है। यहाँ पे क्या है, क्या क्या डिस्प्ले करना है, ब्लड ग्रुप तक डिस्प्ले करना है जिसका डिपार्टमेंट नंबर D01 हो और ब्लड ग्रुप या तो डिपार्टमेंट नंबर इसका हुज डिपार्टमेंट नंबर इज आइदर D02 और ब्लड ग्रुप इज B4, या तो उसका डिपार्टमेंट नंबर D01 होना चाहिए या ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इनको अभी हम करते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। टू ओपन माय MySQL, यूज IP, show tables, SELECT. Now I'm going to satisfy all the question on EMP table. My first question is display show the records of employee whose salary in between यहाँ से यहाँ। चलिए अगर हम इसको वन बाय वन सेटिस्फाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। SELECT select, क्योंकि टोटल बोला है कोई भी स्पेसिफिक नहीं है तो हम एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम EMP where salary 29,000 greater
देन इक्वल टू 29,000, ये लगा। देखिए 30,000 30,000 13,000, ठीक है। चलिए एक काम और करते हैं, इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। इन CRT insert into EMP VALU values E10 name VIKAS Vikas KUMA Kumar, then blood group B positive, salary 45,000 and department number is D04। न्यू एंट्री हो गई है। फिर से ऊपर वाला कमांड चलाते हैं, देखिए ये आ रहा है, और हमको कितना चाहिए, इसके बीच में चाहिए। अगर हम यही वाला कमांड यहाँ पे अगर हम ऐसे कर दें, लेस देन ये करें, लेस देन इक्वल टू 40 करें, तो उस 45 वाले को छोड़ दे रहा है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच का चाहिए। देखिए जो हमारे दो हमारी ये कंडीशन है, ये तो सेम चल रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, ये यहां से लेकर यहां तक सेम है, सी यहां से लेकर यहां तक ये सेम है। जो सेम चीज हो उसको लिख लीजिए एक बार, SELECT select abstract from EMP WHERE where SALARY salary, ये लिख दिया, ठीक, सैलरी तक। अब पहला वाला ये वाला लिख लीजिए आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 29,000, ठीक। और दूसरा क्या पार्ट आ गया, थोड़ा सा स्पेस कर देंगे, दूसरा पार्ट आ गया सैलरी के बाद ये वाला हिस्सा। वेयर तक हमारे सेम है और यहाँ पे हमारे चेंजेस हैं, ठीक है। तो हमको वेयर के बाद ही यहाँ तक लिखना चाहिए था, ये वेयर तक सेम है। फिर हम ये वाला उठा लेंगे, ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन SALARY सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 29,000। फिर दूसरी कंडीशन उठाएंगे, वेयर सैलरी इक्वल टू, क्योंकि वेयर तक हमारे सेम है, तो SALARY सैलरी लेस देन इक्वल टू 40,000। ये इसको अभी हम रन नहीं करेंगे। क्यों नहीं रन करेंगे, क्योंकि हमें बीच में लगाना है लॉजिकल ऑपरेटर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज उन सब का रिजल्ट डिस्प्ले कराइए जिनकी सैलरी 29,000 से लेकर 40,000 के बीच में है, इंक्लूडिंग 29,000 40,000 उनकी, ठीक है। यानी कि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है कि 29 ही हो तो आ जाए और 40 ही हो तो आ जाए। यहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज एंड ऑपरेटर, आइदर गो फॉर दिस वन और दिस वन, दिस टू आर एंड ऑपरेटर इन बिटवीन दीज टू। और से कंजंक्शन, इंग्लिश में कंजंक्शन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम एंड लगा देंगे, एंड सैलरी, ये सीधा रिजल्ट। और इसके इस एंड को हम रिप्लेस कर सकते हैं डबल एम्परसेंड के थ्रू, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ एंड। सी इट प्रोवाइड यू सेम रिजल्ट। कोई भी 29,000 का है ही नहीं, इक्वल टू लेट सपोज हमें 28,000 चाहिए, तो 28,000 यहाँ पे आ जाएगा। सी 28,000 आ गया। वही मैं सोच रहा था कि 29,000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 29,000 का कोई भी है ही नहीं। तो आपसे बॉस कुछ भी पूछ सकता है कि हमें 30 से लेकर, जिनकी 30 से ऊपर हो,
तो हम ये वाला सिंबल लगा देंगे, इक्वल टू का ना लगा के 30 से ऊपर हो और 40 के बीच में हो। कोई भी नहीं है, यस कोई भी नहीं है, 30 से ऊपर कोई भी नहीं है। एक और कंडीशन कि हमारी 40 से ऊपर हो और 46 तक आ जाए। तो एक आ गया विकास कुमार का जिसका 45 था। तो इस तरह से हम कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं व्हेन गिवन कंडीशंस आर ट्रू। देखिए कंडीशन ट्रू हो गई, 40,000 और इसके बीच में ये कंडीशन ट्रू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हुज ब्लड ग्रुप इज आइदर। आइदर का मतलब या तो का मतलब या तो ए प्लस मिल जाए या बी मिल जाए, कोई भी एक मिल जाए और ब्लड ग्रुप आपका सेम है। जब हम कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं तो हम यूज करते हैं और सिंबल का। स्टेटमेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या डिमांड कर रहा है, एंड के लिए डिमांड कर रहा है या और के लिए। जैसे यहाँ पे हुज ब्लड ग्रुप इज आइदर, यहाँ पे लिख दिया ना आइदर, तो आइदर का मतलब होता और ना, आइदर ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए। लेट्स डू दैट, SCLE select abstract from EMP WHE where B ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप के बदले। कल जैसे या प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले बताया हुआ है कि इनके ऊपर नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि जो ये वैल्यूज हैं ये किस फील्ड नेम पे है। A प्लस B प्लस किस फील्ड नेम पे, डिपार्टमेंट नंबर DEPTNO है। ये नहीं कि आप डिपार्टमेंट नंबर पे जा रहे हैं या ब्लड ग्रुप पे जा रहे हैं, है ना। सॉरी, ये ब्लड ग्रुप ऐसे लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है, B ग्रुप है, ये B अंडरस्कोर ग्रुप है। तो आप ब्लड ग्रुप ना लिख के क्या लिखेंगे, B अंडरस्कोर ग्रुप, B अंडरस्कोर ग्रुप, GROUP ग्रुप। या तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम ग्रेटर देन लेस देन का इसलिए क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये एज अ कैरेक्टर है। और जब भी कैरेक्टर की बात आएगी हम क्या यूज करेंगे, इक्वल टू। क्या होना चाहिए ये, या तो ए पॉजिटिव होना चाहिए या यही आपका बी ग्रुप क्या होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव। सही। और दोनों को अगर हमको सेटिस्फाई करना है तो क्या लगा देंगे हम इन दोनों के बीच में, और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन। सी, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव वाले आएंगे, बाकी ओ और ए बी को छोड़ दिया इसने। देखिए तो यहाँ पे भी क्या है, जब आपके सेम फील्ड नेम है और वैल्यूज उसकी डिफरेंट है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर नेम हुज ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव शुड बी फ्रॉम D2। यहाँ देखिए स्पेसिफिक हो गया है, और वाला नहीं है, यहाँ पे एंड है, शुड बी आ गया, उसे होना ही पड़ेगा। इट मीन्स कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशन। उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होना चाहिए और वो D2 का ही होना चाहिए, शुड बी का ही। लेट्स डू दैट। यहाँ पे मल्टीपल आपके क्या हो गए, आपके मल्टीपल फील्ड नेम हो गए और मल्टीपल वैल्यूज हो गई उसकी। SCLECT सिलेक्ट, क्या क्या डिमांड कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर एंड नेम। देखिए यहाँ तक आपका क्या डिस्प्ले करना है, एम्प्लॉय नंबर एंड नेम। तो एम्प्लॉय नंबर हमको EMP के थ्रू नंबर EMP NO के थ्रू मिल रहा है, और नेम EMP नेम के थ्रू मिल रहा है। फ्रॉम EMP WHERE वेयर ब्लड ग्रुप B GROUP इक्वल टू क्या होना चाहिए, B पॉजिटिव होना चाहिए, और डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, DE डिपार्टमेंट नंबर D02 ही होना चाहिए, D02 ही होना चाहिए। और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है तो हम यूज करेंगे इन बिटवीन दीज टू कंडीशन वी हैव टू यूज एंड ऑपरेटर।
प्रेस एंटर। ओ बी ग्रुप होना चाहिए, बी ग्रुप, जी ग्रुप लिख दिया, बी ग्रुप सी। ये दीपक सिंह, ठीक है, ये दीपक सिंह डिपार्टमेंट बी पॉजिटिव है और डिपार्टमेंट नंबर D02 है। और कोई है रमेश कुमार बी पॉजिटिव D2। विकास रावत बी पॉजिटिव D2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मल्टीपल फील्ड नेम विथ मल्टीपल वैल्यूज। लास्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर एंड ब्लड ग्रुप। यानी कि सैलरी को छोड़कर बाकी ये सारे चीज आपको दिखाने हैं। उनका डिपार्टमेंट नंबर ये देखिए यहाँ पर आइदर आ गया, या तो D01 होना चाहिए या ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सेम क्वेरी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम बढ़ा देंगे और BGROUP ब्लड ग्रुप और DEPT डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो और ये क्या हो, या तो डिपार्टमेंट नंबर D01 का हो या ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो, दोनों में से कोई एक मिल जाए। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, और का सिंबल या और का साइन, जो भी आप लिखना चाहिए। सी देखिए यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई, मिल गया। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन कंडीशन कोई एक ट्रू होनी चाहिए, ये ट्रू हो गया तो ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे हो सकता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई है। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन ट्रू हो गई है, भले वो D01 का नहीं है, फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई है, भले वो D01 का नहीं है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए और में, तो रिजल्ट एग्जीक्यूट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।